Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Subodh Mishra. धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज दिन है मंगलवार और हम आधे घंटे के इस शो में शेयर बाजार और अर्थ जगत की खबरों पर गौर करेंगे। आज के समाचारों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। नमस्कार सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुबोध। पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Subodh. Yes, friends, let's begin with the headlines. Domestic markets eased by more than 1% amid profit booking. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that a right balance is needed between market regulation and freedom. And leading India's delegation to the BRICS Energy Ministers meeting in Brazil, Union Minister Manohar Lal showcased India's clean energy achievements. देश के शेयर बाजार के सूचकांकों पर मुनाफा वसूली का साया, सूचकांकों में 1% से ज्यादा की गिरावट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, बाजार नियमन और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन जरूरी। और ब्राजील में ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारतीय स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। तो आइए देखें कि आज बाजार का क्या हाल रहा। देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांकों में आज 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। ऑटो, एफएमसीजी और वित्त क्षेत्र के शेयरों में बिकवाली के दबाव से आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 873 अंक यानी 1.06% गिरकर 81,186 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 261 अंक यानी 1.05% गिरकर 24,684 पर आ गया। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1.58% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.9% की गिरावट दर्ज की गई। All right, let's take a look at the stocks in detail now. Well, major domestic equity indices saw more than 1% decline, dragged down mainly by weakness in auto, FMCG and financial stocks. This fall came amid uncertainty in the global trade environment and due to profit booking at high levels. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex fell 873 points or 1.06% to close at 81,186. At the National Stock Exchange, Nifty 50 fell to 61 points or 1.05% to settle at 24,684. The broader market indices also ended with losses. The BSE Mid-Cap Index fell 1.58% and the Small Cap Index lost 0.9%. In the Sensex Index, 27 out of 30 companies ended with losses. Among the top laggards, Eternal fell 4.1%, Maruti lost 2.76%, and Mahindra declined 2.13%. The only three stocks to buck the falling trend today were Tata Steel with 0.73% surge and Infosys with 0.08% and ITC with 0.07% marginal rise. If we look at the sectoral indices at the BSE, all 21 sectors today registered losses. The sector which fell the most was auto sector with 2.13% fall. Consumer discretionary sector lost 1.81% and utilities sector declined 1.64%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,534 companies declined, shares of 1,435 companies advanced, while shares of 135 companies remained unchanged.
At the National Stock Exchange, 49 companies hit their 52-week high, while 18 hit their 52-week low. So, Sushma, all your years of experience, and we want to make use of that and ask you that, what makes the index go down? The Sensex falling 873 points, Nifty falling 261 points. Some domestic factors or some geopolitical reasons? How would you explain? I think there's a mix of factors. First, of course, the Indo-US trade talks are underway right now, and I think that has lent a kind of element of uncertainty in the market because, the US has already finalized a trade deal with the UK, already finalized with China, and India's talks are still going on. Delegation has left, and there has already been, a announcement that this will only be finalized probably by September, and they're going to do it in phases. So there is some element of uncertainty, like what's going to happen in India. So that's one, I think, major factor because the delegation has just left. The other thing, of course, is that the Moody's downgrade of the U.S. Financial situation, which has actually shaken international markets, perhaps not so much India, but certainly there's an impact on India. And lastly, of course, there is an element of profit booking because there has been a rally after Operation Sindoor. There was a rally, and now the people are settling down, so there is some element of profit booking. जी सुषमा, आपने जैसा बताया अभी गिरने के आपने 3 कारण बता दिए कि बाजार कैसा गिरा, और जैसा अभी लालिमा ने डिटेल्स जो बताए थे कि जो हमारे 30 शेयर्स में से 30 कंपनीज में से 27 के तो आज गिरावट में रहे हैं शेयर्स, और काफ़ी है। जैसे इटर्नल 4.1% है, मारुति लगभग 2.3% गिरा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.13% है ये। लेकिन मज़ेदार बात है कि चलिए 27 का तो कारण आपने बता दिया जी, बाकी 3 के कारण है कि टाटा स्टील आज 0.7% सर्ज है, इन्फोसिस, खैर इन्फोसिस को चलिए 0.08 को आप ना माने, आईटीसी 0.07 है, टाटा स्टील स्ट्रांग है। हाँ बिल्कुल, तो ये इसलिए है मेरे ख्याल में क्योंकि अभी हमारे देश में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर, वो थोड़ा मतलब बॉयंट है इस वक्त, और इसमें आगे भी आप देखेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में स्टॉक्स का जो सिलसिला है शायद वो बढ़ता ही रहेगा। और टाटा स्टील ऑब्वियसली इसके बिना, स्टील के बिना तो कुछ नहीं है। और वैसे भी टाटास की जो दो चीज़ें हैं, एक तो स्टील है और दूसरा टाटास की जो इक्विटी है, क्योंकि टाटास के जो ब्रांड्स हैं आजकल उनकी वैल्यूएशन भी ज़्यादा हो गई है। अगर आप टीसीएस को देखें, टाटा मोटर्स, टाटा अब ऑटोमोबाइल्स में भी देखें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में टाटास इज़ अहेड, तो टाटास का जो ब्रांड इक्विटी है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। चलिए, स्वदेशी ब्रांड के लिए बहुत अच्छी बात है। और एक बात है सुषमा कि जिस तरह से हमने देखा अभी कि आपने मूडी का जिक्र किया था, जो डाउनग्रेड की बात की थी, इसके बाद आईटी सेक्टर में हमने जो असर देखा है, तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स दिख रहे हैं? क्योंकि आज भी अगर देखें और कल का भी अगर हम याद करें तो कल भी आईटी सेक्टर की स्थिति कुछ, लेकिन आज भी वही हाल है। और एक इन्फोसिस को देखें तो वो भी लगभग फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा कोई बढ़त तो है नहीं वो, लेकिन बाकी भी नुकसान में है। ये थोड़ा वही बात है जिसके बारे में मैंने बोला, ये इंडो यूएस ट्रेड टॉक्स, इसमें थोड़ी नर्वसनेस है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारे आईटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़े क्लाइंट्स तो कस्टमर्स तो उनके अमेरिका में ही है, और इसके बारे में नर्वसनेस है क्योंकि एक तो मर्चेंडाइज ट्रेड है और दूसरा सर्विसेज एक्सपोर्ट का जो ट्रेड है। तो इसके चलते अगर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें
नई ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। अभी तो उन्होंने हाल में एक टैक्स लगाया है ऑन रिमिटेंसेस, हमारे जो इंडियंस वहाँ पर रिमिटेंसेस भेजते हैं तो उसका भी टैक्स है। तो काफ़ी सारी जो नई रेगुलेशंस ला रहे हैं उसका अगर असर हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर पड़ेगा, और दूसरी वो जो चाहते हैं कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें, अगर हमारी आईटी कंपनीज वहाँ, खैर हमारी कई आईटी कंपनीज के बहुत बड़े प्लांट्स और प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर, HCL का है और इन्फोसिस के भी काफ़ी सारे कैंपसेस हैं, काफ़ी उनकी बड़ी एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि इससे ज़्यादा और बढ़े, तो इसका तो असर होगा आईटी सेक्टर के ऊपर। तो इसलिए अनिश्चितता बनी रहेगी। And to counterbalance, when he was saying, how come Tata Steel is going strong, let me counterbalance the both and ask, whatever happened to the auto sector with 2.13% fall? Somehow, informally, auto sector has become a kind of a marker of the economy, informally, if we may talk. Why such a big fall? Well, first of all, it is a big marker of the economy, because now there was a time when, way back, we're talking about 60s and 70s, when we didn't have much of an automobile industry. We did have trucks and buses, but not passenger cars and two-wheelers so much. Now, our automobile industry comprises as much as 50% of the manufacturing GDP in the country. So it is a huge, huge amount. So it does, as you say, it has a very big impact. The decline, I think, I think it would be short-lived, because there still continues to be demand in the automobile sector. We will see, of course, we are having the rural areas are catching up in two-wheelers, but even that there is a catch-up. So I think this is just a broader issue of the stock markets reacting to these events that I talked about. हाँ, आपने ऑटो की बात की लालिमा, जब तो और सुषमा, आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों में ऑटो सेक्टर को एक आर्टिफिशियल पुश देने की भी कोशिश की है सरकार ने, जो 15 साल में गाड़ियों को रिटायर करने की जो नीति है, बिल्कुल, चाहे हम उसके पीछे कारण कुछ भी कहें, एक्चुअली उससे बहुत बड़ा पुश मिलता है, बहुत बड़ा पुश मिलता है, बहुत बड़ी डिमांड जनरेट होती है उससे, कि 15 साल में पेट्रोल की गाड़ियों को रिटायर कर दें और 10 साल में डीजल की गाड़ियों को रिटायर कर दें। लेकिन अब जब हम दूसरे देशों को देखें, विकसित देशों को भी देखें अगर, तो वहां पर, और खास करके अब जब पर्यावरण की चिंताएं इतनी आ रही हैं, संसाधनों के बेहतर उपयोग की बात आ रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो अब इतनी बड़ी चीज को, क्योंकि टेक्नोलॉजी चलिए अपग्रेड कर सकते हैं, शायद हम कुछ फेर बदल करके कर सकते हैं, तो क्या इस पर एक बार फिर से सोच विचार की जरूरत होगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या, क्योंकि बीच में मांग भी उठती रही है कि गाड़ियों को इतनी जल्दी जंक नहीं करना चाहिए, हम शायद उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उसका, तो इसका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो सहमत हूँ आपकी जो सोच है इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें कोर्ट्स ने भी हाथ की भी जिम्मेदारी, उन्होंने कहा है कि भाई 10 साल और 15 साल, और मैं समझती हूँ कि अब कुछ हमें कहना नहीं चाहिए, जुडिशियल ओवररीच के बारे में काफ़ी बातचीत होती है, क्योंकि एक्सपर्टीज तो हमें क्लाइमेट एक्सपर्ट से लेना चाहिए। हालांकि जो स्टडीज आती हैं, अगर आप दिल्ली की ही देखें तो जब इसके बारे में बात होती है तो कहते हैं कि ऑटो एमिशंस का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अगर ये दिल्ली में है, ये जरूरी नहीं कि बाकी सारे शहर हमारे देश में वही स्थिति है। तो इसके बारे में मेरे ख्याल थोड़ी सी इसका ज्यादा साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए, और इसके बारे में सोचना चाहिए कोर्ट्स को भी और सरकार को भी। और ईवी की बात की थी हमने अभी, तो जैसे नए ईवी की है, लेकिन ये जो पुरानी गाड़ियां हैं, इनमें भी थोड़े फेरबदल के साथ ये आईसी इंजन हटा के इन्हें ईवी में बदला जा सकता है, और ये या सीएनजी इंजन जा सकते हैं। तो इससे एक्चुअली हम फिर काफी पॉल्यूशन की बात हो या संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की बात हो, तो शायद अर्थव्यवस्था के लिए वो एक बेहतर कदम साबित होगा। And you mentioned the rural aspect, Sushma. I was just thinking that even in the worst of times, our tractor sales have always been up. Tractor sales have always risen. Yes, tractor sales have been buoyant. Demand has always been up. Tractor sales have been buoyant. It's only two-wheelers that have lagged, but they are also picking up in the last 1 year. Right. आइए रुपए की हालत पे नजर डालते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में 23 पैसे गिरकर
₹85.63 पर बंद हुआ। दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 100.2 पर चल रहा था। और आई थिंक मुझे लगता है एशिया के बाज़ारों पर भी नज़र डाल लेते हैं। आज वैसे कुछ ज़्यादा वहाँ हुआ नहीं है। प्रमुख एशियाई बाज़ारों में आज बढ़त का रुख बना रहा है। हांगकांग में ठीक ठाक बढ़त देखी गई 1.5% की। चीन का शंघाई कंपोजिट 0.38%। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 0.16% ऊपर रहा और जापान के निक्केई में 0.08% की मामूली बढ़त रही। लेकिन दक्षिण कोरिया के कोस्पी सूचकांक में 0.06% की मामूली गिरावट देखी गई। ताज़ा समाचार मिलने तक यूरोप के प्रमुख सूचकांकों में हल्की तेजी देखी जा रही थी। जर्मनी के डैक्स, फ्रांस के कैक और लंदन के फुटसी 100 तीनों में 0.5% से ज़्यादा की बढ़त बनी हुई थी। लालिमा, अब हम अमेरिका के बाज़ार पर गौर करें उससे पहले एक छोटी सी बात सुषमा से हम कर ले चीन के बाज़ार पर। और याद होगा पिछले हफ्ते भी हम बात कर रहे थे चीन में जो वहाँ के शेयर बाज़ार, खास करके जब भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बाजार में जो तेजी दिखाई दी थी और वो चेंगडू के शेयरों ने हंगामा किया हुआ था और वो सब जमीन पर आ गए, अब आगे वापस जी। तो यही है कि स्टॉक मार्केट्स सेंटिमेंट्स का खेल एग्जैक्टली सेंटिमेंट्स का खेल है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है। अब आप चेंगडू की बात करें, चाइना की बात करें, ये पूरे विश्व भर में है कि सेंटिमेंट्स ड्रिवन होती हैं स्टॉक मार्केट्स। और कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आप देखें कि April 2 जो टैरिफ की जो अनाउंसमेंट था उसके बाद पूरे मतलब वर्ल्ड में मार्केट्स का क्रैश हुआ था। लेकिन क्या हुआ, 3-4 दिन के बाद फिर मार्केट्स वापस आ गए, ऊपर आ गए। तो ऐसा नहीं था कि इट वाज ये वो मार्केट क्रैश नहीं है जैसे डिप्रेशन में होता है या ब्लैक मंडे एक बार हुआ था कई साल पहले, कई दशक पहले। तो ये जो मार्केट क्रैश होता है ये सेंटिमेंट ड्रिवन काफ़ी है, नॉट नेसेसरली ड्यू टू एक्चुअली इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। हाँ, वैसे भी उस समय एक और मसला आ गया था कि चीन के साथ समझौता हो गया था, व्यापार युद्ध जो चल रहा था वो भी सेटल हो गया था। तो एक बड़ा फैक्टर शायद शंघाई मार्केट के लिए वो भी था कि वो यूएस के साथ की जो मीटिंग हुई थी उनकी ये ट्रेड के ऊपर। All right, let's take a look at the U.S. markets. Well, stocks managed to close higher on Monday as investors looked past Moody's recent downgrade of the U.S. credit rating, while bringing down the rating from top-notch AAA to AA1 on Friday. After markets closed, Moody's had cited large fiscal deficit and rising interest costs as the reason for the downgrade. Stocks also trimmed losses from earlier in the session after longer-dated Treasury yields pulled back from their session highs. The benchmark 10-year bond yield had climbed toward the key 4.5% level, while the 30-year bond yield briefly topped 5%, a milestone not seen since late 2023 before retreating. The Dow Jones Industrial Average edged up roughly 0.3%. The S&P 500 closed up nearly 0.1%. And the tech-heavy Nasdaq Composite was almost flat with a positive bias. Now, Sushma, this merits a bit of a discussion. Yes. For the first time in 100 years, America is without an AAA credit rating. We can't blame President Trump because this was almost coming. But we have DOGE, or DOGE as we call it, the Department of Government Efficiency under President Trump, which claims to have saved $160 billion. But how else can President Trump manage this? Because he would need to have more taxes and he would have to cut down expenditure. How will he manage? Big $1 million question. Well, I don't think I can advise President Trump on how he can manage it, but because this is an intractable problem. This has been going on for so many years, and every year you have this problem again of their their Senate and House of Representatives having to agree to pass the budget once again and raise the debt ceiling. The debt ceiling has to constantly be raised.
and allow the government expenditure to go on. So this is something that has been going on. So, I mean, I'm surprised that Moody's has downgraded on this basis. But the other factor is that, which you have talked about in the rest of your story, is about the fact that what has happened. I mean, you've talked about stocks and bonds. Stocks are recovering from this effort, but bond yields have gone up, and bond yields have gone up very sharply, indicating that bonds are being actually sold. And there is the feeling that there's a lack of confidence in the U.S. economy. So this is something new. The fact of the debt overhang is not a new thing, but the lack of confidence in the U.S. economy after the introduction of Donald Trump's new tariff policies is another issue. And this is what is driving bond yields up. The fact that there is a feeling that the U.S. Treasury bonds, which are considered the safest bonds in the world, the safest financial instruments in the world, people want to sell them rather than hold on to them, and this has led to the yields rising. So this is a issue, and this is the issue that had prompted President Trump, after the April 2nd announcement, he had pulled back on the tariffs because of the impact on the bond markets. And so this is something that is again happening now, that people are unhappy about what's happening. The economic scenario in the US is becoming fragile, and Moody's downgrading is adding to that situation. There is also high inflation in US, and in this scenario, it'll be tough for it'll be tough to attract investors. And President Trump keeps saying that we want America to be a manufacturing place. So that's going to be a tough. Well, it's I think I mean that's a fantasy of his. I would describe it as a fantasy because it's not going to happen. America is not going to become a manufacturing country now. It is a service-oriented economy, and they have to accept it. They're very expensive as a manufacturing location. Whether Apple makes iPhones in India or in China, they're certainly not going to make them in America. And it'll be probably 3 times the price or 5 times the price for American consumers. Right. जी सुषमा, हम चले अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी चर्चा हुई है, तो हम भारत पर भी आते हैं कि हमारे जो इंडिया इंक ने जो प्रदर्शन किया है, अभी चौथी तिमाही के आंकड़े आए हैं. आपने भी गौर किया होगा कि आमदनी के आंकड़ों से जाहिर है कि अब अर्थव्यवस्था में आसार अच्छे दिख रहे हैं, रिकवरी की ओर जा रहा है सब कुछ. पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में सेल्स ग्रोथ 6.5% बढ़ा है, और तीसरी तिमाही में ये अगर इससे पहले वाले क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में ये 5.6 था. और जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ग्रोथ पर गौर करें तो ये 15% बढ़ा है ईयर टू ईयर, जबकि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले. और इस बात का संकेत है कि दुनिया में जारी तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में व्यापार क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा है. और इसके अलावा इस पर तो खैर हम बात करेंगे ही. एक और जो इसमें ख़ास तौर पर चाहूँगा आपसे टिप्पणी की, कुल हम जो बैंकिंग सेक्टर है हमारा, क्योंकि अभी एसबीआई ने रेट कट किया है, जो आरबीआई के रेट कट के बाद से पास ऑन किया, तो उसमें इंडिया के कुल आमदनी में अगर हम गौर करें तो बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है. 40% आई थिंक, मुझे लगता है शायद 40% के आसपास है. और पूरे बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन अभी ठीक ठाक नजर आ रहा है, बहुत अच्छा रहा है. तो और जितने भी हैं हमारे वित्तीय संस्थान, उनकी आमदनी में फोर्थ क्वार्टर में 10% तक की वृद्धि देखी गई है, और नेट प्रॉफिट में 8.2% की तेजी देखी गई है. तो ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा संकेत है, और वैसे भी जो हम अपनी इंडिया इंक की बात करते हैं उसके लिए क्या बताता है? तो पहली बात तो जैसे आपने कहा कि इंडिया इंक के बारे में कि जो सेल्स ग्रोथ 6.5% बढ़ी है चौथी तिमाही में, और पहले 5.6% था, तो ये और अब 6.5% है. तो ये जो रेजिलियंस जो आप कह रहे थे कि इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद बाकी दूसरे जो देशों में जो ग्रोथ है
उसकी जो दर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यूएन की लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इवन नाउ। हालांकि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है हमारे हिसाब से, कि पिछले साल 7.1% था, इस साल यूएन ने कहा है 6.3% होगा। तो उस हिसाब से हमें तो लगता है कि हमारे देश में भी कम हुआ है, लेकिन यूएन कह रहा है कि आप फिर भी आप यू आर द मोस्ट प्रॉमिसिंग लार्ज इकोनॉमी, इतनी तेज़ी से आपका ग्रोथ चल रहा है। हालांकि जैसे आपने कहा कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं बाकी देशों में, अमेरिका को आप देख लीजिए उनकी ग्रोथ कम हुई है, चाइना को देख लीजिए उसकी पिछले साल 5% हुई थी, 4.6% मेरे ख्याल इस साल होगी। और बाकी जो देश हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन का भी कम हो रहा है, और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ब्राज़ील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, उन सब में डाउनग्रेडिंग हो रही है ग्रोथ की। तो एक तो ये है, तो वी आर अ शाइनिंग स्टार, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, बैंकिंग क्षेत्र में ऑफ कोर्स ये बहुत मजबूत हमारा एक सेक्टर बन गया है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बड़ी है, और जैसे आपने खुद ही कहा इट्स अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। चलिए ठीक है, अब अगली और भी कुछ बड़ी खबरें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि बाजार नियमन और स्वतंत्रता के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता है। आज ये और भी ज़रूरी हो गया है कि जब बढ़ती भू राजनीतिक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के बीच भारत घरेलू विकास पर अधिक निर्भर हो रहा है। नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के 16वें वार्षिक दिवस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में दुनिया में कई रुकावटें रही हैं। इस कारण मजबूत, उत्तरदायी और दूरदर्शी संस्थाओं की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में परिसंपत्तियों की बिक्री, विनिवेश और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे ढांचागत सुधारों से बाजार की पूरी क्षमता को खोलने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सीसीआई की भूमिका का उल्लेख करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आयोग ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस पर एक आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी है सीसीआई की अध्यक्ष रवनीत कौर के साथ, जो आकाशवाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम मनी टॉक में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के इस कार्यक्रम को 101 मेगाहर्ट्ज पर रात के 9:30 बजे से सुना जा सकेगा। All right, Union Power Minister Manohar Lal underscored energy security as one of the most pressing global challenges of our time. Leading India's delegation to the BRICS Energy Ministers meeting in Brazil, the minister showcased India's clean energy achievements. He highlighted India's decade-long progress in expanding power generation, boosting renewable energy, advancing green hydrogen, and improving energy access. The minister stressed the need for deeper cooperation among member nations to ensure economic stability and sustainable development. He reaffirmed India's commitment to energy efficiency, green hydrogen, nuclear energy and biofuels. And let's take a look at oil now. Well, crude oil prices slipped today, also weighed down by factors like Moody's downgrade of US sovereign credit rating and pressures on global growth due to uncertain trade environment. Brent crude was 0.47% down at $65.23 per barrel. WTI crude was also down 0.40% at $62.44 per barrel when reports last came in. सर्राफा बाजार में सोना आज लगभग 0.5% की बढ़त के साथ 94,210 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी भी 0.8% बढ़कर 96,420 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य लगभग 0.6% बढ़कर 93,834 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.86% बढ़कर 96,278 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। सुषमा जी, मार्केट मंत्र में आने और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Well, domestic markets eased by more than 1% amid profit booking. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that a right balance is needed between market regulation
and freedom. And leading India's delegation to the BRICS Energy Ministers meeting in Brazil, Union Minister Manohar Lal showcased India's clean energy achievements. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Subodh Mishra, and our expert Sushma Ramachandran signing off. Namaskar. Market Mantra.